Good morning to all of you. Welcome to your TSN English class 11th. Today we'll be starting chapter 2, the address from your book Snapshot. And before starting with page number 13, I would like to tell you about the previous, some gist of the chapter. A woman with her daughter has to flee from home and the mother dies. Long after the war, the daughter comes back to her town. She meets the women and the woman name is Mrs. Darling and the number of the house is like number 46, and with whom her mother had left all her belongings. The woman even refuses to recognize her. So nor does she show any intention of returning the things she has in her possession. So all those things which belongs to the authoress mother, that lady kept all those things in her own possession, and after that the author of the chapter, she thinks that, or she decided to leave all of them behind with her. So let's read the chapter. Come to page number 13, students. So this is your page number 13 and start from here. I followed the girl along the passage. An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. So here in this paragraph, जो हमारी ऑथर हैं चैप्टर की ऑथरस, वो कहना चाह रही हैं दैट आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज, बिकॉज वो गर्ल जो है जब वो उनके घर सेकेंड टाइम इन हर सेकेंड विजिट, व्हेन शी डिसाइडेड टू ट्राई द सेकेंड टाइम, द गर्ल अबाउट 15 years old, she opened the door for her and she asked her that whether her mother was at home or not. तो girl reply करती है, no, my mother is not here and she is doing some other work, wait here. So जब वो ऐसा कह के जाती है, after that वो उसका wait नहीं करती. Instead of waiting for that, she tried to follow the girl along the passage, and while following that passage, an old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. तो वो क्या देखती है, उनका एक आयरन का हनुका, जिसको कैंडल होल्डर जो होता है, काइंड ऑफ दैट, वो जो वहाँ पे टका हुआ होता है और वो उसे देखती है, जैसे लाइक किस तरह जो है वो आयरन हनुका वहाँ पे टका हुआ है. So we never used it because it was much more cumbersome than a single candle. उसकी मदर ने और उसे कभी भी इसे यूज़ नहीं करा होता है, because it was like much more than a candle holder. So वो जितना उन्होंने सोचा है, cumbersome means it's like heavier, so it's heavier than what they have think about it. That is why वो जो iron हनुका था, ऐसा जो है जब डोर ओपन हुआ, वो उसके पीछे गई, कमरे में थी और वो आगे आगे गई, तो उसने देखा कि उनका वो जो अजीब सा वातावरण और वो सब कुछ था, उसने वो देखा, और वो जो कम्बरसम सा हेवियर सा कैंडल स्टिक होल्डर था, जिसको उन्होंने कभी यूज़ भी नहीं किया था, वो वहाँ पे लगा हुआ था. वी वॉन्ट यू सिट डाउन, आई आज द गर्ल. तो गर्ल उससे क्या कहती है कि क्या आप बैठ नहीं सकते. क्या आप बैठ नहीं सकते या आप बैठ जाइए. शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम. गर्ल ने उससे पूछा क्या आप बैठोगी नहीं, एंड देन उसने लिविंग रूम का गेट जो है खोल दिया. एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और वो उसके पीछे चली गई और वहाँ बैठी. I stopped, horrified. I was in a room I knew and did not know. I found myself in the midst of things I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere, or because of tasteless was everything was arranged, because of ugly furniture, or the muggy smell that hung here there. I don't know, but I
scarcely dared to look around me. The girl moved a chair. I sat down and stared at the woolen tablecloth. I rubbed it. My fingers grew warm from rubbing. I followed the lines of the pattern. Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired. अब जब गर्ल उस रूम में बैठ जाती है, जो नैरेटर हैं वो गर्ल उससे चेयर पास करती है और नैरेटर वहाँ बैठ जाती हैं. आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड. आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो. सो वो कहती हैं कि मैं वहाँ पे जिस कमरे में वो थी वो उसके पीछे अंदर चली गई. वो थोड़ा सा डर कर वहाँ रुक गई. एंड आफ्टर दैट इन दैट रूम वो जानती और नहीं भी जानती थी, दोनों ही बातें हैं. एंड उसने खुद को उन चीज़ों के, उन थिंग्स के बीच में पाया जिसको वो दोबारा देखना चाहती थी. बिकॉज शी वॉन्ट्स टू सी ऑल दोज बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर. लेकिन उसने क्या देखा, वहाँ पर कुछ स्ट्रेंज चीज़ें रखी हुई थी. आई फाउंड माई सेल्फ इन मिडिस्ट ऑफ द थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगैन बट अप्रेस्ड मी. सो उसने देखा कि वो सारी चीज़ों को वो दोबारा देखना चाहती थी, लेकिन उन्होंने एक अजीब वातावरण में मुझे परेशान कर दिया. लेकिन वो किस चीज़ से ऑप्रेस्ड या परेशान हो गई? द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर ऑफ दैट हाउस. और बिकॉज ऑफ टेस्टलेस वॉज एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड. और या फिर ये भी हो सकता है कि जो कुछ भी घर में चीज़ें अरेंज हो रखी थी, दे ऑल दोज थिंग्स वर नॉट प्रॉपरली अरेंज्ड. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ अगली फर्नीचर एंड मगी स्मेल दैट हंग देयर. क्योंकि उन्होंने अगली सा, बहुत ही गंदा सा फर्नीचर रख रखा था, या वहाँ पे जो वो मगी स्मेल, दैट सीलन या बदबू की जो स्मेल थी, उसके कारण भी उसे वहाँ थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा था. आई डोंट नो बट आई स्कैर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी. वो कह रही है मुझे नहीं पता, बट उस समय उसने बहुत मुश्किल से ही साहस किया या डेयर किया वहाँ आसपास देखने का. द गर्ल मूव्ड अ चेयर. आई सैट डाउन. गर्ल ने एक चेयर आगे पास करी और वो उस पर बैठ गई. और बैठने के बाद आई सैट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ. और उसने किसको देखा? वुलन टेबल क्लॉथ को देखा. आई रब्ड इट. माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग. उसने उस वुलन क्लॉथ पे अपने हैंड से रब करा. आफ्टर रबिंग दैट उसके हैंड्स पे उसे हल्की सी गर्माहट महसूस हुई. I followed the lines of the pattern, and then she started follow the lines of the pattern. Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired. So वो अपनी पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रही है कि ये वही टेबल क्लॉथ है जो उसकी मदर भी बिछाया करती थी, और इस टेबल क्लॉथ पे कहीं ना कहीं एक बर्न मार्क होगा जिसको इन्होंने शायद रिपेयर नहीं किया गया था या नहीं की गई थी. माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल. गर्ल ने कहा मेरी मदर जो भी वर्क कर रही हैं वो करके जल्द ही घर आएंगी. आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर. विल यू हैव अ कप? तो वो पूछती है कि मैंने आपके लिए टी प्रिपेयर कर दिए, क्या आप चाय का एक कप जो है वो, या चाय कप विच इज़ फुल ऑफ टी, क्या आप वो पीना पसंद करेंगी? थैंक यू. आई लुक्ड अप. द गर्ल पुट कप्स ऑलरेडी ऑन द टी टेबल. सो ऐसा कहने के बाद जो गर्ल है वो टी टेबल पे आकर कप्स रख देती है. शी हैड अ ब्रॉड बैग. उस गर्ल की भी वैसी ही ब्रॉड बैग थी, जस्ट लाइक हर मदर, अपनी मदर की तरह. शी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट. उसने एक वाइट पॉट से टी को पोर किया. ऑल इट हैड वॉज गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड. और वाइट टी पॉट पे जो गोल्ड बॉर्डर था वो था. आई रिमेंबर शी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट. और उससे वो सब याद आने लगा जब उसने बॉक्स में से खोला और उसमें से कुछ स्पून्स निकाले. दैट्स अ नाइस बॉक्स. आई हर्ड माई ओन वॉइस. और उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी कि कितना अच्छा बॉक्स है. इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम. वो कह रही है एक स्ट्रेंज आवाज़ थी, लेकिन क्योंकि हर आवाज़ जो है इस रूम में दैट इज़ वेरी डिफरेंट टू हर. दैट्स अ नाइस बॉक्स. आई हर्ड माई ओन वॉइस. और ऐसा उसने अपनी खुद की आवाज़ सुनते हुए सुना. Oh, you know about them, she said, turned round and bought me my tea. और उसने कहा ओ आप इन सब के बारे में जानती हो, और उसने उसे उसकी
टी ऑफ़र कर दी। शी लाफ्ड, माई मदर सेज इट इज़ अ एंटीक। वो हंसी और उसने कहा कि हाँ, मेरी मदर कहा करती थी ये एंटीक चीज़ें हैं। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, शी पॉइंटेड राउंड द रूम। उस गर्ल ने 15-year-old गर्ल ने कहा हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसने पूरे रूम की तरफ पॉइंट आउट किया। सी फॉर योर सेल्फ, आप खुद देख लीजिए। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, आई न्यू विच थिंग्स शी मेंट। क्योंकि वो गर्ल, उस गर्ल की जो हमारे गर्ल तो कह रही है कि सी हियर और देयर, वो पॉइंट आउट कर रही हैं, बट जो मार्को मिन वो हैं या जो नैरेटर हैं, जो ऑथर्स हैं चैप्टर की, शी न्यू एवरीथिंग ओवर देयर बिकॉज all those things belongs to her mother finally. So she said like that, I had no need to follow her hand, I knew which things she meant. मुझे उसका हाथ की तरफ और जो पॉइंट आउट कर रही थी वो भी देखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज उससे पता है ये चीज़ें कहाँ से आई हैं और कौन कौन सी कहाँ हैं। आई जस्ट लुक एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। वो कह रही है मैं सिर्फ टी टेबल के ऊपर जो स्टिल लाइफ रखी हुई थी उसे देख रही थी। As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. तो वो कह रही है जब मैं एक बच्ची हुआ करती थी तो मैं जो है उस प्यूटर प्लेट, यानी कि जिसे हम बोलते हैं जस्ते वाली प्लेट, तब वो उस हमेशा उस जस्ते वाली प्लेट या प्यूटर प्लेट पे क्या खाने का ड्रीम करती थी और क्या खाने के लिए सोचती थी, दैट वो कभी ना कभी इस प्लेट पे एप्पल खाएगी। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग शी सेड। वो कहती है हमने इन चीज़ों को हर चीज़ों के लिए यूज़ किया। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। जब हम एक बार इन प्लेट्स का यूज़ कर लेते हैं तो हम उन्हें वापस वॉल पर हैंग कर देते हैं। आई वॉन्टेड टू सो मच बट आई वॉजेंट एनीथिंग, इट वॉजेंट एनीथिंग स्पेशल। तो वो कह रही है कि आई वॉन्टेड इट सो मच बट, लेकिन ये कोई ये मतलब वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चाहती थी, बट लेकिन ये अब उसके लिए कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं है। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। और ऐसा सब सोचते सोचते उसने टेबल क्लॉथ पे बर्न मार्क ढूंढ लिया। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। जो गर्ल है उसके मन में भी कुछ क्वेश्चंस थे, एंड शी स्टेयर्ड एट द मार्को। Yes, I said, you get so used to of touching all these lovely things in the house. तो वो कहती है कि yes, हाँ मैंने कहा कि तुम घर की सारी चीज़ों को जो है वो बार बार छू सकती हो। यू आर यूज टू ऑफ दैट एंड यू हार्डली लुक एट दैम एनी मोर। कि तुम मुश्किल से ही इन्हें देखती हो। यू ओनली come to page, next page, you only notice when someone is missing because it has to be repaired or because you have lent it for example। वो कहती है कि आप उन चीज़ों पे तभी ध्यान देते हो जब वो आपके पास नहीं होती हैं या गायब होती हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि इसकी या तो रिपेयर हुई होती है या आपको उधार दी गई होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, सो लाइक दिस narrator tries to explain, or the authoress tries to explain everything to that girl, that you get so used to of touching all these lovely things in your house, you hardly look at them anymore, and you only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it for example। Thank you, and we'll be starting our next fourth video in our next or your next part. Thank you children.